Dear students, I am Jay Krishnan. Welcome to JK Physics classes. We have studied all the theory of elongation, stresses, strains, elasticity का सब theory part हम लोग किया है. Now we will do the sums. Sums will take 1, 2 or 3 lectures. I will try to finish in 2 lectures. The numericals. This is numericals on elasticity. Now, what is the stress in a wire which is 50 meter long and 0.01 centimeter square in cross section? Area दिया है, centimeter square मतलब area, and load दिया है 100 kilogram. First we write the formula. What is the stress? Stress equal to force upon area. Force is not in kilogram. Force has to be in newtons. हम लोग को मालूम है force is equal to m into g. So m into g equal to m into g upon area. मास दिया है 100, g is 9.8 upon area. एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर बेकार का है, हमको चाहिए मीटर स्क्वायर चाहिए. क्या करेंगे? you know that centimeter square can be converted to meter square. 0.01 का मतलब क्या होएगा? 1 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. डेसिमल को उधर लेके गया, 2 डिजिट लेके गया तो 10 raised to minus 2 इक्वल टू मीटर स्क्वायर के लिए 1 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 4. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे 10 raised to minus 4. ये आएगा 1 into 10 raised to minus 6 स्क्वायर मीटर. जब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इधर 1 into 10 raised to minus 6, तो इधर आ गया हमारा फॉर्मूला. 100 का मतलब 10 raised to 2 into 4. पहला 9.8 लिखेंगे, फिर 10 raised to 2 into ये 10 raised to minus 6 ऊपर जाएगा तो 10 raised to 6 होएगा, equal to 9.8 into 10 raised to 8 Newton per square meter. This is the answer. Please write it down, please. I hope you have written this. Now let us see here. A rubber band, originally 30 centimeter long, is stretched to a length of 32 centimeters. So, original length L equal to 30 centimeter, delta L, final length कितना हो गया? 32. 32 minus 30 equal to 2 centimeter. Delta L मिला, L मिला, and what is the strain produced? Delta L मिला, L मिला, strain is equal to, very simple, strain is equal to delta L upon L. सेंटीमीटर को अभी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, कारण क्या है? ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है. डेल्टा L is equal to 2 centimeter upon L is also, L is 30 centimeter. 1 upon 15. 1 upon 15 is the strain. Strain is equal to 1 upon 15. समझा बराबर? 1 upon 15. लिख लो, एकदम सिंपल सम हो गया. So this tells you strain equal to delta L upon L. Note down करो. Okay, let's do the next sum. A telephone wire L length is equal to 125 meter. We will write down what is given.
and 1 millimeter radius, r equal to 1 millimeter. हमको मिलीमीटर नहीं चाहिए, हमको मीटर चाहिए. तो 1 into 10 raised to minus 3 meter. ये कन्वर्शन तुमको आना चाहिए. 1000 millimeter equal to meter. I hope all of you know the conversion. 1 millimeter is 1 into 10 raised to minus 3 meter. तो भी रेडियस मिल गया अपने को. फोर्स F मिल गया अपने को 800 न्यूटन. What is the value of the Young's modulus for the material? Young's modulus of y equal to what? Question mark. वो चाहिए. First we will write the formula for Young's modulus. Fy is equal to stress upon strain. Stress upon strain. Stress is F upon A upon strain is delta L upon L equal to F upon A into L upon delta L. इसमें से सीधा मिल जाएगा Young's modulus का. is equal to F कितना दिया है 800 into L. L is 125 upon A area. एरिया हमको ढूंढना है. एरिया कैसा मिलेगा? एरिया इज पाई आर स्क्वायर. उसमें आर दिया है कितना दिया है? हाँ 10 raised to minus 3 मीटर. 10 raised to minus 3 मीटर है. तो पाई इज 3.14 into 10 raised to minus 3 square. Because r is equal to 10 raised to minus 3. Okay. So ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इस जगह. Pi is 3.14 into r square is 10 raised to minus 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 10 raised to minus 6. This will become 10 raised to minus 6 by r square. एरिया आ गया into डेल्टा L. डेल्टा L भी दिया है. डेल्टा L दिया क्या? What is the value of the Young's modulus? Delta L दिया होगा. हाँ delta L stretch to a length of yes. Delta L equal to final length minus original length 125.25. Final length minus original length 125. That is delta L. Delta L is equal to 0.25. तो इधर डालना पड़ेगा 0.25. Again, y equal to stress upon strain. Stress is F upon A upon strain is delta L upon L. उल्टा जाएगा, L ऊपर जाएगा, delta L इधर. F हमारे पास है 800. उसका एरिया हमको मिला पाई आर स्क्वायर. R कितना है 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 का स्क्वायर आएगा 10 raised to minus 6. 3.14 10 raised to minus 6 into area. एरिया मिल गया अपने को 3.4 10 raised to minus 6 into delta L. Delta L is final length minus original length. पूरा लेंथ हो गया. कितना हुआ 125.25. पहले कितना था 125. This minus this will give you delta L. अभी ये सिंप्लीफाई करेगा तो तुमको मिल जाएगा. ये 3.44 into 10 raised to minus 6 ये ऊपर जाएगा तो 800 8 into 10 raised to 2 into 125 upon 3.14 ऐसा ही रहेगा into 10 raised to minus 6 into 25 into 10 raised to minus 2. डेसिमल राइट साइड में करेगा तो 10 raised to minus. दो डेसिमल इधर से उधर तक गया. दो प्लेसेस 10 raised to minus 2. अभी 25 will cancel here. 25 5s are 25 का टेबल 25 into 5 is 125. Okay, हो गया. 8 into 5 कितना होता है? 8 into 5 40 into 10 40 upon 8 3.14 इधर है 3.14 into 10 raised to 2 इधर है into 10 raised to 5 10 raised to नहीं
8 into 5 ऑलरेडी होगा 10 raised to 2 और 10 raised to 6 ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 6 रहेगा into 10 raised to 2. So 40 upon 3.14 जो भी आंसर है तुम लोग ढूंढो into जो भी है into 10 raised to 10 वो आएगा हमारा y. ये 40 अपॉन 3.4 कैलकुलेट तो तुम्हारा काम है डिवाइड करने के लिए, ठीक है? तो ये आंसर तुमको आएगा. यू डू दिस, लेट मी चेक योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. .73 is the answer into 10 raised to 10. इसको ऐसा भी लिख सकता है 1.273 into 10 raised to 11. ऐसा डेसिमल को लेफ्ट साइड जाएगा into 10 raised to 1 करना पड़ेगा. 10 raised to 1 into 10 raised to 10 is 10 raised to 11. This is Young's modulus. Young's modulus का ही आंसर आया मीटर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द आंसर. चेक योर आंसर. ये कैलकुलेशन भी दिया मैंने तुमको 40 अपॉन 3.14 डिवाइड करने को कोई किसी को भी आता है, वो आंसर डिवाइड करेगा तो इतना आएगा. दैट इनटू 10 raised to 6 into 10 raised to 2 into 10 raised to 2 is equal to 10 raised to 10. 12.73 into 10 raised to 10 is 1.273 into 10 raised to 11. हो गया? लिख के ले लो जल्दी. All right, let us do the next one. A wire of mild steel. I told you what is the mild steel. Mild steel बोलेगा तो स्टील बोले तो बर्तन बनाने का स्टील नहीं है. बर्तन बनाने वाला स्टील को स्टेनलेस स्टील बोलता है. ये माइल्ड स्टील हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वगैरह. आयरन हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड स्टील. तुम लोग स्टील बोले तो बर्तन का स्टील ऐसा सोचता है, वो नहीं. ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करता है माइल्ड स्टील. इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर. दैट मीन्स ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर. Diameter equal to 0.6 millimeter. So radius will be आधा of diameter is radius 0.3 millimeter. हमको नहीं चाहिए. Equal to 3 into 10 raised to -1 millimeter equal to 3 into 10 raised to -4 meter. तो मिलीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है. हमारा यूनिट मिलीमीटर नहीं है कभी भी. ऐसा यूनिट में मीटर है, ऐसा यूनिट में मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर नहीं है. सो 3 into 10 raised to -4 मीटर हो गया. रेडियस मिल गया. अभी हमको gets extended by 6.3 millimeter. Delta L extended by 6.3 millimeter. Delta L equal to 6.3 millimeter. हमको नहीं चाहिए ये 6.3 into 10 raised to -3 मीटर. मीटर में कन्वर्ट करना है हर एक. डेल्टा एल मिल गया, आर मिल गया, एल मिल गया. अभी हमको क्या चाहिए? When a certain force is applied to it, if the Young's modulus is given, y is given, वो हमेशा याद रहता है 2.1 into 10 raised to 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. हमेशा हम लोग को याद रहता है यंग्स मॉडुलस 2.1 into 10 raised to 11. स्टील का यंग्स मॉडुलस सबको मालूम होना चाहिए. यही यूज करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. सब यंग्स मॉडुलस इतना है. तो यंग्स मॉडुलस मिला, डेल्टा एल मिला, एल मिला और रेडियस मिला. हमको क्या चाहिए? कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स. सो वी विल राइट अ फॉर्मूला नाउ. इधर से चालू करते हैं. y is equal to f upon a upon delta L upon L equal to f upon a into L upon delta L. फॉर्मूला है y equal to this. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको f चाहिए. f चाहिए तो f को उधर रखने का, बाकी सबको
y a delta L अपॉन L इक्वल टू f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो f मिल गया इक्वल y का वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया पाई r स्क्वायर 3.14 इंटू r कितना है r दिया है 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया, यंग्स मॉडुलस y हो गया इंटू डेल्टा है, डेल्टा किधर भी लिखा है मैंने, डेल्टा 6.3 इंटू 10⁻³ y हो गया, एरिया हो गया, डेल्टा हो गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ L भी लिखा है किधर भी, L किधर लिखा है 11.5, फर्स्ट क्लास। सो दिस विल बी 2.1 इंटू अभी सब नंबर्स पहले लिखेंगे, 10 बाद में लिखेंगे, 3.14 ये बाद में लिखेंगे इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर विल बी 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर आएगा 10⁻⁸ इंटू 6.3। अभी सब नंबर्स लिखेंगे 10 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁸ ऑलरेडी लिखा है तो बाद में लिखो इंटू 10⁻⁻8 इधर जो लिखा इधर 6.3 करके इंटू 10⁻⁻8 3 इंटू 3 9 इंटू 6.3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3 सब लिखा 10⁻⁻8 10⁻⁻3 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 3.14 भी लिखा है 2.1 एंड एक बाकी बचता है 10⁻11 देखने का, एक भी मिस नहीं करने का इंटू 10⁻11 अपॉन 1.5। सो ऐसा लिखना है, कोई भी मिस नहीं होने, 10⁻11 इधर है वो भी लिखा है, ये 10⁻⁻8 है वो भी लिखा है और 10⁻⁻3 वो भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, चेक करने 2.1 3.14 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 6.3 सब हो गया। अभी हम लोग 1.5 2 3 एक कट करके 2 हो गया। हाँ अभी हम लोग लिखेंगे 2.1 इंटू 3.4 इंटू 2 इंटू 3 is 6 इंटू 6.3, ये तुमको कैलकुलेट करना ही है, अब वो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा इंटू 10⁻⁻8 -8 और -3 मिलके -11 हो गया, -11 और +11 दोनों कैंसिल हो गया, 10⁻⁻11 + 11 = 0, तो 10 का कुछ भी नहीं, 10⁻1 लिखने का जरूरत नहीं, उतना डिवाइड बाई कुछ भी नहीं नीचे, ये मल्टीप्लाई करो तुमको फोर्स मिलेगा, ये मल्टीप्लाई तुम करो 2 सेकंड में हो सकता है, ट्राई करो कितना आता है जरा देखो। हो गया मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कितना करीब 250 के करीब आता है, एक्चुअली एक्यूरेट लिखना है 249.4 ऐसा कुछ भी है, दैट इज द सो मेनी न्यूटन्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये फाइनल आंसर है। और 249 डेसिमल में कुछ मिस्टेक होगा, 249.3 हो गया, 249.7 हो गया, चलेगा मल्टीप्लाई करना है, इक्के ले लो जल्दी। Okay, let's do this. A typical NEET तो JEE सम है
सो ये दिया है a wire that stretched by 4 millimeters. एक वायर है here. This is one. There is another wire here. This is 2. इसका डेल्टा एल मिला है 4 मिलीमीटर. तुम लोग को मालूम है 4 मिलीमीटर मतलब 4 into 10⁻³ मीटर. If the same load, एक लोड अप्लाई किया है इधर F equal to some load is there applied. कितना है बोला नहीं. Same load is applied to wire on the same material. Same material का मतलब क्या होता है? What is the same? एक मटेरियल अगर स्टील है तो ये भी स्टील है, ये स्टील होगा ये भी स्टील है, ये ब्रास होगा ये भी ब्रास है. सेम मटेरियल बोलते हैं. यंग्स मॉडुलस इज सेम. y1 y1 इक्वल टू y2. इसका यंग्स मॉडुलस y1 y2 इधर लिखता है हमें y1 इक्वल टू y1 इक्वल टू y2. सेम मटेरियल उसका मतलब एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड. सो F1 इक्वल टू F2. सेम फोर्स इज अप्लाइड. Same force is applied. F1 equal to F2. Or length, half the length and double the diameter. L2 is equal to half of L1. Therefore, L2 upon L1 is equal to half. Okay, ये एक है. Length is half of this. What about diameter? इसका diameter D2 is equal to twice D1. Therefore, D2 upon D1 equal to 2. इसका diameter से double है. D2 is twice D1. So D2 upon D1 equal to 2. A typical neat JWD numerical है. अभी what will be the change in its length? ये डेल्टा L2 कितना है? डेल्टा L1 दिया है. डेल्टा L1 दिया है. डेल्टा L1 कर दिया है 4 मिलीमीटर 4 into 10⁻². Let us see the formula. फॉर्मूला तुम लोग को क्या है? हर एक में क्या है? बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं. फॉर्मूला इज y is equal to f into f upon a into l upon delta l. y1 f1 upon a1 into l upon delta l1. So इसमें y1 हो गया, y2 is equal to f2 into l1 a1 delta l1. So same material means this is equal to this. y1 equal to y2 है ना? So this is equal to this. f1 into l1 upon a1 into l1. इक्वल y2 का f2 into l2 upon a2 into delta l. इसमें क्या है? f1 and f2 कैंसिल हो जाते हैं. y1 equal to y2 मतलब this is equal to this. l1 upon l2. l1 के बारे में दिया है. l1 upon l2 हमको दिया है. क्या है? L1 upon L2 इधर भी दिया. L1 upon L2 is 2 upon 1. 2 upon 1. L2 upon L1 is 1 upon 2 का मतलब L1 upon L2 is 2 upon 1 is equal to ये क्या है इधर? F1 L1 L1 upon delta L1 L2 upon delta L2 equal to
यानी इसका L2 अपॉन A2 इंटू डेल्टा L2. सो डेल्टा L2 हमको मिलेगा, हमको चाहिए डेल्टा L2 चाहिए. डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L इक्वल टू L2 अपॉन A2 इंटू 1 अपॉन did I make some gadbad here? Y1 equal to F1 upon A1 into L1 upon delta L1, correct. Y2 equal to F2 upon A2 into L2 upon delta L2 बराबर है. सो हमको एफ एंड एफ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो A2 ऊपर जाएगा A2 इंटू L1 इंटू डेल्टा L2 अपॉन A1 इंटू L1 इधर है इंटू अपॉन इंटू L2. L2 नीचे आ गया, A1 L1 इधर है, A1 L1 L2 अपॉन A2 ऊपर गया इक्वल टू हमको क्या चाहिए अभी उधर डेल्टा L2. हाँ, डेल्टा L2 ऊपर गया है, अपने को डेल्टा L2 चाहिए. I hope you understood all the 4 sums we have done, and please like, share and subscribe. Okay, thank you. We'll see for the next numerical in the next lecture. All right, thank you.